topic, and that is the most important from the inner ear. That is a Meniere disease. That is a Meniere disease. This is the most important topic of inner ear. So we are not going to more detail from the inner side because it is a complex and difficult to understand at that level. So we have some important topic which are asking in Viva and Curie that you should be noted here, and we are going from such these topics only. Okay. So first thing which is named as a Meniere's disease. Meniere's disease. Meniere's disease. Inner ear disease. So basically that have some different name. So at that time when you have a Viva or MCQ, you should not confuse. The big name is a Meniere's disease, and the second name is a Scala hydrops. Scala media hydrops. It means that anybody can you ask you what is Scala media hydrops. It means it's ask you a Meniere disease. Another name is a endolymphatic hydrops. So basically what happened? The Meniere disease is a endolymphatic labyrinth disease. It is a disorder of endolymphatic labyrinth. Endolymphatic labyrinth disorder is called Meniere's disease, but in behind of the Meniere disease, three things must be there. Otherwise, it is not a Meniere's disease. Which are these three things? This is a trademark that patient have a paroxysmal attack of vertigo. यानी हो रहा है फिर खत्म हो रहा, हो रहा है फिर खत्म हो रहा, paroxysmal attack of vertigo. Tinnitus and deafness, that is a sensory neural deafness. These three things must be there present, then you label that it is a disease of Meniere's disease. If there is a vertigo, you should not label that it is a Meniere disease. If only tinnitus, you should not be label it a Meniere disease. If there is a sensory deafness only, there is a no tinnitus vertigo, you should not be labeled to a Meniere's. So mind it please. You label when these three things are present. Cluster, paroxysmal attack of vertigo. एक खत्म हुआ फिर कुछ वक्त हुआ फिर दोबारा अटैक हो गया फिर खत्म हो रहा फिर अटैक हो रहा वर्टाइगो. ओके. एंड सेकंड टिनाइटिस कानों में घंटियां बजना, और तीसरा है कि मुझे तो सुनता ही नहीं, सेंसरी न्यूरल डेफनेस. सेंसरी न्यूरल डेफनेस. इफ दीज थिंग्स आर प्रेजेंट, you should label that it is a Meniere's disease. And what is a Meniere's disease? It is simply disorder of endolymphatic labyrinth. Second name is a hydrops of the Scala media. Scala media. So, and third one name is here, big name, that is a Meniere's disease. And it is a disease of the internal ear. It is a disease of internal ear. So mind it please. So now the thing is arise, what are causes behind this disease? क्या cause हो सकते हैं इस बीमारी के? बुक कहती है कि अब तक जो है इसका एग्जैक्ट कॉज नहीं मिल सका कि क्यों होती है. There is no exact cause. There is a certain consideration is there that these things should be called the Meniere disease. Number one is a faulty water metabolism. Faulty water metabolism.
Second say that it is due to a hormone imbalance, and third one say that it is due to allergy. It is due to allergy. Someone say no, it is due to hypoxia, ischemia. Hypoxia, ischemia उसकी वजह से होती है. कोई कहता है नहीं, it is due to sodium and water retention. उसकी वजह से होती है. उसकी वजह से होती है. These are the many theories there that consider that it is in that way, that some say it is due to this, but it is due to. But pathology is clear. Why menial disease occur? So you should understand pathology. When you understand pathology, the menial disease is easy to understand. Now we come to have pathology for the help of figure. Some say that this is a figure of the internal ear. This one is the scala vascularis, and this is the scala media, and this is the scala tympani. You know that the part is a labyrinth, that is a bony and the cochlea. The cochlea have a perileaf and the bony have an endoleaf. So what happened here? This is a Reissner membrane. What happened? This is a Reissner membrane. Now you fit theories here. जो थ्योरीज हैं वो यहाँ पर, वो क्या कहते हैं कि कोई भी काज जो ज्यादा प्रोड्यूस कर दे फ्लूइड को, कोई भी काज, एलर्जी, वाटर फॉल्टी मेटाबॉलिज्म, सोडियम वाटर रिटेंशन, हार्मोन इम्बैलेंस, या यहाँ पर फ्लूइड की एब्जॉर्प्शन कम हो जाए, कि भाई जितना एब्जॉर्ब होना तो वो हो ही नहीं रहा, पाइप में तो क्या होगा, जमा होना शुरू हो जाएगा, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा यहाँ पर फ्लूइड. जब ये फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा किसी भी काज की वजह से, उन थ्योरियों में से जो दी है, तो क्या करेगा ये इस रेसनर मेम्ब्रेन को पुश करेगा ऊपर की तरफ, यहां क्या करेगा, पुश कर देगा. और एक वक्त ऐसा आएगा कि यहां पर फिस्टुला बन जाएगा नेक्रोसिस की वजह से इस रेसनर मेम्ब्रेन में. तो ये फ्लूइड निकल के इसमें आ गया, इसमें स्केला वेस्कुलरिस में आ गया. तो केमिस्ट्री चेंज हो गई, यहां पर क्या हुआ, चेंज हो गई. सोडियम और पोटेशियम मिल गए तो ये क्या करेंगे, एक्शन पोटेंशियल नर्व का चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, वर्टाइगो के अटैक्स शुरू हो जाए, और उस वक्त तक होंगे जब तक कि ये फ्लूइड निकल के ये दोबारा हील ना हो जाए. फिर दोबारा बढ़ा, फिर इसमें सुराख हुआ, फिर फ्लूइड गया, फिर अटैक, फिर अटैक, फिर अटैक. तो ये क्लस्टर ऑफ चेन है कि किस तरीके से जो है वर्टाइगो डेवलप हो रहा है, किस तरीके से वर्टाइगो डेवलप होता है. ये पैथोलॉजी है कि यहां तक आपने देखा ये रेसनर मेम्ब्रेन, ऐसी अगर फिगर है आपकी बुक में, नॉर्मल है, लेकिन यही रेसनर मेम्ब्रेन बल्ज आउट हो जाए और इसको धकेल दे और फिर यहां पर नेक्रोसिस होकर प्रेशर इफेक्ट की वजह से होल हो जाए, तो क्या होगा, फ्लूइड चला जाएगा. और ये इसी तरह चलता रहेगा, प्रोसेस चलता रहेगा, चलता रहेगा. ठीक है जी. तो ये है पैथोलॉजी समझने की कि कैसे क्लस्टर या पैरोक्सिमल जो है अटैक्स हो रहे हैं बार 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 बार. तो ये कहते हैं कि स्केला हाइड्रोप्स हो जाता है, डूब जाता है. हाइड्रोप्स लफ्ज पानी से लिया, जैसे हाइड्रोफोबिया. ठीक है, डॉग जो बाइट करता है उसमें जो बीमारी होती है उसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया. वो क्या है कि पानी को नहीं देख सकता. पानी, आप उसको चाय दे दें पी लेगा, कोई और बात कर दें, रोटी दे दें खा लेगा, लेकिन जैसे ही उसके सामने गिलास पानी का करेगा वो उसको एक्सैजरेट मूवमेंट हो जाएंगे और वो भागेगा उससे. तो ये क्या है, हाइड्रोफोबिया. और हाइड्रोफोबिया अगर डेवलप हो जाए
तो फिर उसका कोई इलाज नहीं। कोई इलाज मुझे याद है कि हम हाउस जॉब कर रहे थे, तो बराबर में कहने गया वो एक आदमी है, वो चाय पी लेता है, जब पानी देते हैं ना तो बहुत मूवमेंट करता है। तो खैर हाउस जॉब के दौरान पड़ा हुआ, हमने कहा भाई इसको तो लगता है कैसे किसी कुत्ते उते ने काटा था क्या? सर वो तो बहुत पुरानी हिस्ट्री है, वो तो 7, 8, 10 साल पहले यहाँ के टांग पे काटा था, फिर हमने पेट में इंजेक्शन भी लगवाए थे। अच्छा तो भाई फिर इसको तो दिखा लें, गले में तो बाहर कोई मसला नहीं है। तो वो उसको आगा खान हॉस्पिटल ले गए, तो उन्होंने उस जमाने में, अब वैसे मेरी तहकीक नहीं है, उस जमाने में 65,000 का एक इंजेक्शन आता है, प्रोसर मेडिकल से है, वो आपको मिलेगा, वहां से आप ले आए, तो वो एक लास्ट स्टॉप है। तो वहाँ इंजेक्शन लग रहा था, वहाँ उसकी सांसें जा रही थी आपकी, तो वो भी कोई कारामंदी हो या लगने के बाद होता वल्लाह आलम, लेकिन अब तक मेरे इल्म में ऐसा नहीं है। ये अगर निगरित या लेबीज बॉडीज अगर बन गई तो फिर श्योर डेथ है, इससे पहले है। इसीलिए कहते हैं कि पहले, आजकल के दौर में तो बड़ा मुश्किल है कि डॉग इतने हैं और उसको पकड़ के बांधो, पागल है कि नहीं है, काटता है कि नहीं, और कोई हिस्ट्री है नहीं, इतने चक्रों में पड़ने की जरूरत नहीं। तो फिर वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वैक्सीन कराए अपने, ठीक है जी। लेकिन कैसे कराए, हमारी तो वैक्सीन भी खराब है, वो पहले एयरपोर्ट पे आती है, महीनों पड़ी रहती है, उसको कोई कंटेनरों में पड़ी है, कोई माहौल नहीं दिया जाता, वो डेड लग रही है, इम्पॉसिबल लग रही है, सिस्टम जो है हमारे हॉस्पिटल के फ्रिज खराब है, पड़ी है, एक हाल, कोई हाल ही नहीं है जैसे कहते हैं कोई हाल। तो भाई बेहतर है कि कुछ थोड़ा सा खर्च कर लिया जाए ऐसे मौके पे, तो वहाँ चले जाएं जहाँ कोई ऑथेंटिक बात हो, बजाय बाद में हम इस पछतावे को हासिल करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि हम रोड साइड पे, आप मोटरसाइकिल पे आए भाई के साथ, वाली साहब के साथ, जिसके साथ स्लिप हुआ, गिर गए, अब रोड पे खराश आ गई, ठीक है, खराश आने से क्या हुआ, टके का काम हुआ, और इंजेक्शन कितना का आता है, 7 रुपए का, एनाटॉक्सिल बर्ना के नाम से आता है। ये अगर आपने निगलेक्ट की तो रोड पे क्या होता है, ज्यादातर हमारे यहाँ डॉग हॉर्स ये हो जाते हैं, तो वो जो वेस्ट मटेरियल है वो रोड के साथ आता है, तो उसी के अंदर जो स्पोर्स होते हैं जो टेटनस का क्या करते हैं, टेटनस। तो एक मामूली सुई से आप अपनी जिंदगी अपनी अपने प्यारों की बचा सकती हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। इसी तरह बात चल पड़ी तो मैं बता दूं कि बाद बात ये होता है कि देखते हैं कि हम मेडिकल स्टूडेंट है, तो हम शायद जानते होंगे, हम भी नहीं जानते दोस्तों, और हमारी नेग्लिजेंसी की वजह से एक केस जो है वो ब्लाइंड हुआ। मसलन वो बाहर गया या कोई खानदानी नाचाकी थी, तो वो सो रहा था, तो उस रजाई को हटा के उसके मुंह पे तेजाब डाल दिया, तेजाब डाल दिया, चच्ची ने कहा किसने भाई, तो वो ले आए, बोले ले आए, हमने बोला देखा तो जल्दी करो हॉस्पिटल ले जाए, जल्दी करो हॉस्पिटल, रक्षा पकड़ा, ये पकड़ा, साथ उसके हॉस्पिटल है। वो कहने लगे यार आपको तो इसमें मुसलसल पानी डालना था, इसके ऊपर पानी डालना था, आंख पे पानी डालना था। मैंने हमें क्या पता भाई पानी डालना था, हमें तो इसका कोई आइडिया नहीं था। बोला अब मुश्किल हो जाएगा, अगर ये विट्रस तक पहुंच गया ना तो ये ब्लाइंड हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट यही है कि उन आंखों पे आप मुसलसल वाटर डालते रहें हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए, ताकि तेजाब की कंसंट्रेशन को कम करके विट्रस तक ना पहुंचे। अगर विट्रस इन्वॉल्व हो गया आई का तो ब्लाइंडनेस, तो ब्लाइंड हो गया। वो डॉक्टर है और आजकल भी कई शहजादपुर या शाह में पोस्टिंग है उसकी, 25 में रिटायर हो जाएगा, लेकिन वो ब्लाइंड हो गया, ब्लाइंड। सर हाइड्रोफोबिया वाले पेशेंट्स पानी नहीं पीते? नहीं, उसको देंगे ना तो उसको चॉकिंग का इफेक्ट होगा, गला बंद हो जाता है ना इनको, और ये डेथ भी चॉकिंग ही की वजह से होती है कि उनको हाइड्रोफोबिया, लैरेंजियल एडिमा डेवलप शुरू हो जाता है उसकी वजह से। तो वो जो चीज है, मतलब पानी के अंदर जो है उनको फोबिया डेवलप होता है, इसीलिए डिजीज का नाम ही हाइड्रोफोबिया है, ठीक है जनाब। तो अगर ऐसा केस आए तो आपने पोर करना है वाटर, ताकि हम उसको ब्लाइंडनेस से बचा सके। बाकी तो डिसफिगरमेंट तो जाहिर है वो होगी, वो सेकेंडरी बात है या पहली बात है, लेकिन आप बचा सकते हैं उसकी ब्लाइंडनेस को वाटर डालने से। तो कुछ छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हमें नहीं पता होती। तो अब आते हैं इसी टॉपिक की तरफ। तो हमारे इसमें जो काज बने वो ये बने, पैथोलॉजी ये बनी कि हाइड्रोप्स होता है स्केला मीडिया का, जो कि होल पैदा करता है रेसनर मेम्ब्रेन में, और जिससे मिक्सिंग होती है फ्लूइड की, और क्लस्टर ऑफ अटैक्स होते हैं वर्टाइल। सेकंड कंप्लेन इसके अंदर आपने देखा कि टिनियाटिस है और सेंसरी डेफनेस जाहिर इन्वॉल्व कर रहा है मेम्ब्रेनस को। तो आपने बताया कि इनर ईयर की इन्वॉल्वमेंट क्या करेगी, सेंसरी।
और मिडिल ईयर की क्या करेगी, कंडक्टिव। एक्सटर्नल ईयर की क्या करेगी, कंडक्टिव। ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल ईयर कंडक्ट कर रहा है साउंड को, मिडिल ईयर ट्रांसफर कर रहा है, और इनर ईयर हमें बता रहा है आगे सिग्नल देके कॉक्लिया को और हायर ब्रेन सेंटर को कि रेहाना से क्या मांगा जा रहा है। ठीक है जी, तो हम चलते हैं अपने आगे। और इससे तो हमने कवर किया डेफिनेशन को, हमने कवर किया पैथोलॉजी को, और हमने कवर किया कासेस को। अब ऐसे लोगों के अंदर जो है और क्या हो सकता है, तीन चीजों के अलावा इनमें ये होगा कि ऐसे लोग पेल हो सकते हैं, एनीमिक हो सकते हैं, हाइपोटेंशन हो सकता है इन लोगों को। ठीक है जी, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन यानी ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन हो सकता है इन लोगों को। तो ये चीजें और मिल सकती हैं, और वो तो आप लगा लें, वो तो सबके साथ ही आजकल मेडिसिन में जब हम पढ़ते थे तो नाजिया वोमिटिंग तो हर एक के साथ लगाते थे ना, कि नाजिया होगी वोमिटिंग होगी, इसको तो हमें वैसे ही आते थे। तो हमें याद है कि मैडम अस्मा होती थी, वो उसके पूछने का तरीका बड़ा डिफरेंट होता था। मसलन तो हम ये बड़े कॉन्शियस होते थे जब ड्रग्स को बताते थे, तो हम जब कहते थे नाजिया वोमिटिंग, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन करती, अच्छा कॉन्स्टिपेशन, तो और कौन कौन सी ड्रग कॉन्स्टिपेशन करती है, यहाँ जो है वो बड़ा मसला बन जाता है। इसी तरीके से जो उसमें कहा अच्छा तो आगे बताएंगे और कौन कौन सी ड्रग ये करती है, तो वहां तो रट्टा टूट जाता था। तो इसलिए फार्माकोलॉजी जो है तो रटने का ही सब्जेक्ट, समझने का तो है ही नहीं पहली बात, और सबसे बोर सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी, कि रट रट के आदमी थक जाए कि जो है पेनिसिलिन का जो है फंक्शन बताओ, और जो है दूसरी चीजों के फंक्शन बताओ, इसकी साइकिल बताओ, बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं। तो हमने यहाँ पर इस पैथोलॉजी को सामने रखेंगी, तो काज आपके सामने आ गई, डेफिनेशन आपके सामने, सारी चीजें आ गई। अब इसके अंदर हम इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन कहते हैं कि कोई वो तो आपको हेल्प करेगी पीटीए तो ये बताएगी कि सेंसरी न्यूरल डेफिनेशन। कहते हैं कि अगर सीटी स्कैन या एमआरआई वो भी इतनी पावरफुल नहीं है कि जितनी जो है कोई ज्यादा हेल्पफुल हो जाए। ठीक है जी, फिर ये कहते हैं कि एक टेस्ट है जो कुछ हेल्पफुल होता है, उसको कहते हैं ग्लिसरॉल और डायूरेटिक टेस्ट। कौन सा टेस्ट कहते हैं, ग्लिसरॉल और डायूरेटिक टेस्ट। उसका मकसद ये होता है कि आप पहले पीटीए करें, फिर डायूरेटिक्स दें। डायूरेटिक्स क्या करती, जाहिर यूरिनेशन कराएगी और जो है इस एडिमा को और इस फ्लूइड को कम करेगी। फिर दोबारा आप पीटी करें, अब देखें कि इसमें फर्क आ रहा है। तो ये एक पॉजिटिव एक्टिविटी है चेक करने की कि हाँ इन ड्रग्स से जो है इसकी समाप्त पहले ज्यादा वो थी, अब बेहतर हो गई है। तो ये एक टेस्ट है, इसको कहते हैं ग्लिसरॉल और डायूरेटिक टेस्ट। तो ये हम करेंगे। बाकी दो चीजें आपके सामने है, वो तो आजकल मैंडेटरी हो गई है, जैसे पहले एक्सरे और आवाज का होता था, अब हर एक के साथ लग गया है सीटी और एमआरआई। इसलिए जब आपसे कोई ऐसा सवाल पूछा जाए इन्वेस्टिगेशन, तो आप डाल देंगी सारी चीजें अकॉर्डिंग टू रूटीन इन्वेस्टिगेशन, ब्लड सीपी, यूरिन डीआर, एमआरआई। तो इसके अंदर जो की होगी ना, अगर वो लिखी हुई तो हम आपको पूरे मार्क्स दे देंगे, चाहे दूसरी फजूल लिखी हो आपने। फॉर एग्जाम्पल अब डिस्फेजिया है, डिस्फेजिया में की इन्वेस्टिगेशन क्या है, बेरियम सॉल्ट क्या है। अब आपने सारी हाँक दी, सीटी, बीटी, टीटी सारी, ये वो दिल खोल के लिखा, लेकिन बेरियम सॉल्ट नहीं लिखा, तो 0 मार्क्स। ठीक है जी, इसीलिए कहा है कि नाम भले आप लिखते हैं, लेकिन उसमें अगर की है, एग्जामिनर को बताया जाता है कि अगर इसमें बेरियम सॉल्ट होता है हमने मार्क्स देने, इसमें ये सवाल है इसमें मार्क्स देने, ये इसकी डेफिनेशन है दी है तो ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ये हेल्पफुल है, ट्रीटमेंट में ऐसे लिखा है तो ठीक है जी। तो ये इन्वेस्टिगेशन हो गया। अब हम चलते हैं अपनी मैनेजमेंट की तरफ। मैनेजमेंट इसकी दो तरह होती है, एक मेडिकल मैनेजमेंट कहते हैं और एक सर्जिकल मैनेजमेंट कहते हैं। मेडिकल कहते हैं कि 85% मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं, 85% के करीब मेडिसिन से सही हो जाते हैं, और मेडिसिन से सही होना ही इनकी जिंदगी है। सर्जरी बैड प्रोग्नोसिस, सर्जरी बैड प्रोग्नोसिस,
सर्जिकल के प्रॉब्लम बड़े टिपिकल हैं। तो मेडिकल में हम इन लोगों को क्या कहते हैं कि पहले हर चीज को याद हो गया होगा, आप तो आधे से ज्यादा डॉक्टर बन गई है। रीअश्योरेंस है, उसके बाद रेस्ट है, उसके बाद एंटी वर्टिजिनियस ड्रग्स है, उसके बाद आप वेजोडायलेटर ड्रग्स देंगी, ठीक है, वेजोडायलेटर ड्रग्स देंगी और इनकी जो है कॉज को प्रिवेंट करेंगी कि बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल या बहुत ज्यादा सोडियम इलेक्ट्रोलाइट अगर डिस्टर्ब है तो उसको अकॉर्डिंग टू कॉज जो है आप ट्रीट करने की कोशिश करेंगी और ऐसे लोगों को सेडेट करेंगी कि वो आराम करें। क्या करें? आराम करें, सेडेट, ताकि दोबारा उठ के इधर उधर दौड़ना ना शुरू करें। तो मेडिकली तो ये ट्रीटमेंट हो जाएगी। अब सर्जिकली दो ट्रीटमेंट है। सर्जिकल दो ट्रीटमेंट है, एक को कहते हैं कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट और एक को कहते हैं डिस्ट्रक्टिव ट्रीटमेंट, कि बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए लैब्रिंथ को, उसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव सर्जरी। और एक को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव सर्जरी, मतलब उसके अंदर चांसेस रोक के रखते हैं कि शायद काम बच जाए। और एक होता है कि अब काम नहीं बनेगा, अब निकाला जाए, खत्म किया जाए, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है? सर्जरी में दो है, एक कंस्ट्रक्टिव है, एक डिस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव में ये कहते हैं कि जो हमारा एंडोलिम्फेटिक्स डक्ट है इसकी डीकम्प्रेशन करते हैं। क्या करते हैं? डीकम्प्रेशन। तो उसकी जब डीकम्प्रेशन करेंगे, फ्लूइड को वहां से आउट करेंगे, तो उसको क्या कहते हैं? उसके प्रेशर को रिलीज करेंगे, फ्लूइड ना बने उसके अंदर, फूले ना, हाइड्रोप्स ना हो, तो क्या होगा? इसको कहते हैं डीकम्प्रेशन सर्जरी। ये फेशियल नर्व में भी आप कर सकते हैं। फेशियल नर्व डीकम्प्रेशन पढ़ा आपने, जैसे बताया कि उसके ऊपर एडिमा है, उसके ऊपर कोई टिश्यू है, उसके ऊपर कोई वजन आ रहा है, उसको हटाएं, इसको कहते हैं डीकम्प्रेशन। दूसरा है वेस्टिबुलर न्यूरेक्टोमी। क्या है? वेस्टिबुलर न्यूरेक्टोमी। जो नर्व है उसकी जो है पोजीशन को स्टिलिंग करेंगे, उसको कहते हैं वेस्टिबुलर न्यूरेक्टोमी। और तीसरा है शंट ऑपरेशन। क्या है? शंट ऑपरेशन। शंट ऑपरेशन में क्या कहते हैं? जो फ्लूइड को जो है शंट लगा के पाया अर्कनाइड जो स्पेस होती है उसकी तरफ छोड़ देते हैं। सब अर्कनाइड जो स्पेस होती है यहाँ पर, उसको उसमें छोड़ देते हैं, इसको कहते हैं शंट। जैसे ब्रेन में भी शंट लगाते हैं नेक से उसमें, या शंट लगता है किसमें? जब आप डायलिसिस कराते हैं, जब भी शंट लगता है। तो न्यूरोसाइड आपने देखा कि शंट का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा है, ए बी शंट, कार्डियक शंट, दूसरे शंट, इसी तरह यहाँ भी एक शंट बनाएंगे। तो ये तीन चीजें कहलाएंगी कंजर्वेटिव सर्जरी। इसमें हमने अभी तक कोई डिस्ट्रक्टिव काम नहीं किया, लेकिन अब क्या करना है कि ये उस वक्त तक हम करते हैं कि हेयरिंग को बचाएं। क्या बचाएं? हेयरिंग को। पर्पस क्या है हमारा यार? डिस्ट्रक्टिव का, कंस्ट्रक्टिव का। कंस्ट्रक्टिव का क्या होता है? हेयरिंग को बचाएं, बस। जैसे हम लैरेंजेक्टोमी में लैरेंक्स को उस वक्त तक नहीं निकालते, पार्शियल लैरेंजेक्टोमी करते हैं, सब टोटल लैरेंजेक्टोमी करते हैं कि वॉइस को बचाएं, ताकि माशरे में डिप्रेशन का शिकार ना हो, वो बात ना कर सके। तो फिर अगर हम लैरिंक्स को कब निकालते हैं? जब देखते हैं कि ग्रेड 2 से ऊपर जो है सीए हो गया है और अब लाइफ थ्रेटनिंग की तरफ जा रहे हैं, तो फिर हम टोटल लैरिंजेक्टोमी कर देते हैं, सारा निकाल देते हैं, सारा निकाल देते हैं। और फिर वो पेन पेंसिल के सहारे चलता है, या एक किसी तरह का लैरिंगोटोम आता है, उसका बटन ऑन करके इधर रखता है जी मैं इकबाल हूँ, तो इसमें आवाज आती मैं इकबाल हूँ जी, मैं आ रहा हूँ, तो इसकी तरफ से लैरिंगोटोम कहलाता है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव हुई। अब डिस्ट्रक्टिव का मकसद है कि हेयरिंग तो है ही नहीं, खत्म। अब इसकी जान छुड़ाए। क्या करना है भाई? जान छुड़ाओ यार मेरी। कोई सुनता है नहीं यार, इसने तो मैंने बस वो कर दिया यार। अब आप करेंगे डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव में क्या है?
एक कहते हैं डिस्ट्रक्टिव में कि जो वेस्टिबुलर टॉक्सिक ड्रग है रोजाना उसका इंजेक्शन लगाओ, किसमें? इंट्राटेम्पेनिक, टेम्पेनिक के अंदर से करके जेंटामाइसिन जो है वेस्टिबुलर टॉक्सिक ड्रग है वो लगाए, ठीक है। उससे क्या होगा कि डेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डेड स्पेस हो जाएगा, खत्म, कहानी खत्म हो जाएगी। अटैक्स, दूसरी चीजें जो उसको टेनिटाइटिस हो रही थी, ये हो रही थी, वो हो रही थी, इसके अंदर वो खत्म हो जाएगी, क्यों? हेयरिंग तो है ही नहीं। जी बेटा, ट्रांस कैनाल, ट्रांस कैनाल, इसके लिए कुछ इंसिशन दे के काटेंगे नहीं बेटा, यहीं से लोकल एनेस्थीसिया लगा के अंदर, ठीक है। दूसरा क्या है? अल्ट्रासोनिक डिस्ट्रक्शन ऑफ द लेबर। अल्ट्रासोनिक जो आया अल्ट्रासाउंड से जो है हम लगाते हैं जिस तरीके से, अल्ट्रासोनिक डिस्ट्रक्शन लेजर आप अप्लाई कर सकती हैं यहाँ पर, उससे डिस्ट्रक्टिव करोगे अल्ट्रासोनिक डिस्ट्रक्शन डेट। और लेब्रेंथेक्टोमी जो है आप उसकी जो है कर देंगी, लेब्रेंथ जो है उसकी उसको रिमूव करेंगी। तो ये सारी क्या होगी? डेड, डिस्ट्रक्टिव, तबाही वाली सर्जरी, जिसको भाई निकाल दो, निकाल दो, निकालो उसको, क्योंकि अब ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और दुनिया का कायदा कानून है कि जब भी कोई चीज अपने मकसद पे रहती है उसका फायदा लिया जाता है, उसका फायदा लिया जाता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। और जब वो अपने मकसद से हट जाए तो फिर अपने स्पॉट से निकाल दिया जाता है? ऐसे ही ना, अलमारी में बहुत सारे हैंगर हैं, सबसे पुराना पीछे, उसके बाद आगे, फिर आगे, फिर आगे, फिर एक वक्त आता है कि ये निकल जाता है, इसने अपना मकसद पूरा कर दिया, इसकी जगह नया शामिल होता है, फिर ये आ जाता है यहाँ पर, फिर ये आ जाता है। तो माशाल्लाह जो अलमारी भरी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस होके नए साल के डिजाइन सामने आ जाते हैं। तो यही लाइफ है कि अगर हर चीज अपने मकसद पे है तो चल रही है, वरना नहीं है तो जब अभी कौन अपेंडिक्स निकलवाता है? कोई भी नहीं निकलवाता। लेकिन जब ये अपना काम दिखाए और हमें परेशान करे तो हर आदमी बोले निकालो भाई, जान छोड़ो, इसको निकालो। इसी तरह टांसिल है हमारे, नाक की हड्डी है हमारी, इसी तरीके से हमारे एडिनॉइड्स हैं, इसी तरह हमारी जो भी चीजें हैं, जितने पॉलिप हैं, फला हैं, जो चीजें जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और मकसद नहीं हमारा हल हो रहा है, उनको हम निकाल देते हैं। तो यही सारा फिनोमिना यहाँ पर है। इसके साथ दो बहुत ही छोटी चीजें हैं जो समझनी है और उसके बाद एंड करेंगे यहाँ पर। तो ये यहाँ पर मीनियस डिजीज जो है इनर ईयर की कंप्लीट है, और इसको आप जब नाम लिखेंगी तो कोई प्रिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है बहुत लंबा चौड़ा। जैसे हम पूछ लेते हैं कि व्हाट इज मीनियर डिजीज, गिव इट्स कॉजेस, इन्वेस्टिगेशन एंड हाउ यू मैनेज अ केस। तो मैनेजमेंट में आपने क्या लिखना है? मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट। सो मेडिकल में नाम दे दिया आपने भाई, एंटीबायोटिक दूंगी, वेजोडाइलेटर दूंगी, रेस्ट दूंगी, सेडेशन दूंगी। यहाँ पर आप लिखेंगे कंस्ट्रक्टिव सर्जरी और उनके नाम देने कि हाइड्रोलिम्फेटिक जो है और डिकम्प्रेशन है जो है, और मैं यहाँ पर ही करूँ, वो उसको प्रिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं आपको, वो आप समझ लेंगे। इसीलिए जैसे सीए का केस होता है, सीए का, कैंसर का, तो कोई भी केस है, दिमाग में हो, टांग में हो, नाक में हो, कान में हो, कहीं भी हो, तीन चीजें उसका इलाज है, याद रख लेंगे। सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इससे बाहर कैंसर का इलाज ही नहीं। अब कुछ क्या कर रहे थे, रेडियोथेरेपी दी, फिर सर्जरी कर, किसी ने सर्जरी करके, इसको कहते हैं एडजुसेंट थेरेपी, कंबाइंड थेरेपी, के दो को शिफ्ट कर। और जहां रिकरेंस हो गया और जहां सर्जरी नाकाम है, इजाजत नहीं है, उम्र ऐसी है, तो कहां चली गई? जिस्म में फैल गया तो किस पे जाओगी? कीमो पे चली जाओगी। तो ये है आपकी आईक्यू लिखने का। दूसरे देगा ट्रीटमेंट सही, आपने कोई पार्टिकुलर जोर तो नहीं दिया कि ये बयान करो, इसको बताओ, तो पूछ रहा है कैसे मैं तीन चीजों से मैनेज करूँ।
ठीक है ना, तो आपको नंबर मिलेंगे। तो ये लिखना ज्यादा कोई आर्ट नहीं है हमारे नजदीक। हमें ये कि इसने जो लिखा है वो सही। अब ऐसे ही यहाँ लिखा होता अलाय जे अलाय जे अलाय जे अलाय जे। अब इतने पापे भी नहीं है ऐसा सभा देगा 7-8 दिए 7-8 दिए, ऐसा भी नहीं हो रहा। एक नजर से पता पड़ जाता है कि अलाय जे है ये कुछ और है। तो इसलिए मेहरबानी करके ऐसा ना करना। बहुत सारे क्या करते हैं कि वहां लिख दिया और वही सवाल आगे रिपीट कर दिया जो आ रहा था खानापुर करने के लिए। तो ये सारी चीजें या 10 करने थे 11 करके इसमें नुकसान होगा आपको। तो ऐसा ना करें। होता है भाई, मैं दिखा सकता हूँ आपको। काफिया तो सारी हमारे पास दिन रात होती है ना। अच्छा जी, इसमें अब दूसरा 2 छोटे टॉपिक है। वो था एक्वेस्टिक न्यूरोमा और वेस्टिबुलर न्यूरोनाइट। अब यहां समझ लें। वेस्टिबुलर न्यूरोनाइट सिंपल याद करने के लिए ये वैसे ही पूछेंगे कि जब ये टॉपिक मिनिएटिस कोई पूछ ले, हो सकता है आपको साइड में पूछ ले, तो उस याद दहानी के लिए कराने। वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस क्या है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द 8th नर्व वेस्टिबुलर पावर। वैसे क्या है वेस्टिबुलो, यहाँ कॉक्लिया फ्री हो गया। इनके अंदर हेयरिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा, बैलेंस होगा। बैलेंस इसमें बैलेंस का प्रॉब्लम। ट्रीटमेंट वही होती है, एंटीवर्टिजिनस देंगे, सेडेशन देंगे, रेस्ट देंगे, रिशोर्स देंगे, इसमें उसका कोई रोल नहीं। ऐसे लोगों को जब बैलेंस होगा तो हेयरिंग नॉर्मल हो, ठीक है, नाजिया वोमिटिंग हो सकती है बट बैलेंस के उसकी वजह से ये चीजें इसके अंदर जो सिर्फ मिलेगी, वैसे वो पार्ट फ्री होगा से वो बहुत अच्छा होगा। तो वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस हो गया। इस लफ्ज से कंफ्यूज नहीं होता। हाँ, यहाँ आप आएंगी तो ये एक लफ्ज है, ये ट्यूमर है। ये क्या है? ट्यूमर है। और ये शावान शीत जो होती है, शीत वेस्टिबुलोकार्डियर की, उसका ट्यूमर है। और किसका है? 8th नर्व का ट्यूमर है। और ये कौन सा ट्यूमर है? बेनाइन ट्यूमर। सालों बीत जाते हैं इसको जिंदगी में कि ये हमारे अराइज होता है तो ऐसे अराइज होता है, ऐसे एक नुक्ते की तरह, एक स्पॉट इतना कि आप माइक्रोस्कोप देख के देखते। एक्वेस्टिक न्यूरोमा, स्लो ग्रोइंग येलो ट्यूमर, बेनाइन ट्यूमर, स्लो। माना आप इससे अंदाजा लगा लें कि कौन से जानवर की मिसाल दें जो स्लो चलता है, ये भी ऐसी स्लो। लेकिन जब ये बड़ा होना शुरू हो जाए, जब जिस स्टेज पे भी हो जाए, फिर आपने वर्ड सुना होगा कि मम्मा को हमारी ब्रेन ट्यूमर हो गया, रसोली हो गई, और जो है हेडेक नहीं जाता, चक्कर नहीं खत्म होते, प्रेशर पड़ता है आंखों के ऊपर, प्रॉब्लम्स हैं, हमने दिखा थक गए, दिन रात ये हो गए, सर्जरी से कतराते हैं, मेडिकली थोड़ा बहुत मेडिसिन से आराम आता है, फिर मसले मसाइल हो जाते हैं। ये अक्सर कहानियां सुनी होंगी आपने बहुत सारे घरानों में। तो ये है एक्वेस्टिक न्यूरोमा, स्लो ग्रोइंग। और ये कहाँ होता है? जैसे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, ऐसे ही इंटरनल ऑडिटरी कैनाल है। इसके पास सीवीए है, यानी सेरिबेलो वेस्कुलर पोंटाइन एंगल ट्यूमर कहते हैं इसको। वहां पर बैठा होता है जहां पे इंटरनल एक्वेस्टिक मीटर शुरू, ठीक है जनाब, ये वहां पर होता है, स्लो ग्रोइंग होता है। जब ये एक लेवल से ज्यादा बढ़ता है तो फिर सेप्टम्स
स्टार्ट हो जाता है। वो सेप्टम न्यूरोलॉजिकल भी हो सकते हैं, ट्राइजेमिनल भी हो सकते हैं, आंखों वाले भी हो सकते हैं, और कहते हैं कि इतने खतरनाक होते हैं कि आखिर में ये पेशेंट ब्लाइंड हो जाता है। क्या होता है? फिट्स पड़ते हैं, पेपिलोइडिमा हो जाता है, डिलीरियम होती है, कोमा में चला जाता है और इस दुनिया को छोड़ जाता है, इस दुनिया को छोड़ जाता है। ये साइन सेप्टम है। इसके क्या है? हाँ, ये साइन सिस्टम है कि ये न्यूरोलॉजिकल भी इफेक्ट देगा। ट्राइजेमिनल क्या कहते हैं? हमारी जहां जहां सप्लाई होती है वहां क्या होता है? नमनेस पैदा होती है। आंखें बंद करके ऐसे करते हैं, कुछ लगा, सेंसेशन चली जाती है। क्या मुझे पता नहीं लग रहा कि आप क्या लगा रहे, कॉटन लगा रहे नहीं लगा रहे, तो ये चेक करते हैं जब नोज का एग्जामिनेशन करते हैं। जो ग्रुप किया होगा तो चेक कराएंगे कि भाई आप आंखें बंद करो, कॉटन रखेंगे, कुछ लगा, कुछ लगा, तो ये हम ट्राइजेमिनल एरिया जो देखते हैं तो उसके साथ नमनेस होगा, टिंगलिंग सेंसेशन जो होगी, या आपको जो है बस अजब सी फीलिंग होगी उसकी कि कुछ पता ही नहीं। तो ये कहते हैं ट्राइजेमिनल। और न्यूरोलॉजिकल तो आपको पता ही है कि फिर जो है वो सारे प्रॉब्लम, हेडेक, नाजिया, वोमिटिंग, पेपिलोइडिमा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज हो जाएगा, और जो प्रेशर बढ़ेगा तो क्रेनियल नर्व जो है पैरालाइज हो जाएंगी। तो एक फिगर होगी क्या, बहुत सारी तकलीफें सामने आ जाएगी, तो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और सबसे खतरनाक ये है कि पेपिलोइडिमा और जो है डिप्लोपिया, डबल विजन जो है शुरू हो जाएगी कि दो उसको जो है हाल नजर आएंगे। ये सारा है कॉमा और फिर डेथ इसका। तो इन लोगों का मेडिकल तो कोई खास इलाज नहीं, आपको पता है कि ट्यूमर का जैसा कोई खास इलाज नहीं, तो सर्जरी ही इलाज है, सर्जरी इलाज। अब वो सर्जरी में क्या इलाज है जनाब? एक कहते हैं कि 3 अप्रोच से हम इसकी सर्जरी करते हैं। कितनी? 3 अप्रोच से। और पहले इन्वेस्टिगेशन भी बता देते। इन्वेस्टिगेशन में जो अहम है CTA और जो है अपना MRI, CT स्कैन, लेकिन सबसे हेल्पफुल यहाँ होगी MRI। MRI क्या होती है कि जो स्पेसिस होती है, खास तौर पे जो गिल्टियां होती हैं या सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग होती है, ये बता सकता है कि 0.00000 इतना भी कोई चीज हो तो वो क्या बताएगा? MRI। और बोन की जो भी चीज होगी वो कौन बताएगा? CT। ये बात जहन में रख लेना कि सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी इमेज अगर कोई बताएगा तो MRI बताएगा। इसलिए सवाल को पढ़ लीजिएगा और फिर टिक कीजिएगा। सवाल को पढ़ने के बाद टिक करना है आपने, शाबाश। तो ये यहाँ पर देखेंगे MRI और CT मैन है, ठीक है मैन। बाकी तो जाहिर है कि वो क्लिनिकली सारी चीजें आपके सामने प्रेजेंट होगी, उसकी हिस्ट्री होगी, सब चीजें होंगी, ये आपको श्योर कर देगा कि इसको जो है ये प्रॉब्लम है। अब आप सर्जरी करेंगे। सर्जरी में कहते हैं कि ट्रांस लेब्रिंथ अप्रोच, ट्रांस लेब्रिंथ अप्रोच, मिडल क्रेनियन फोसा अप्रोच और रेट्रो सिग्माइड अप्रोच। 3 अप्रोच है, रेट्रो सिग्माइड, ट्रांस लेब्रिंथ और मिडल क्रेनियन फोसा। फिर आपको पता है सर्जरी की अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती है। फिर जो बख्शना बख्शवाना हो बख्शवा लीजिएगा, जहां जहां साइन वाइन करवानी करवा लीजिएगा, क्योंकि फिर जाने का टाइम हो जाएगा। इंसान की इतनी ही जिंदगी है, मैं और आप सारे कोशिश में ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। कहने लगे कि अगर सारी जिंदगी, सारी नेमतें अगर इंसान को मिल जाए तो वो अल्लाह की एक गिलास पानी की कीमत अदा नहीं कर सकता। इसका जवाब ऐसे है कि एक बादशाह था, वो सहरा में भटक गया और उसे बहुत सख्त प्यास लगी। रुल रुला के पहुंचा, उसने बोला यार मैं बादशाह हूं, ये है वो है। कहने लगा कि तू बादशाह है? तो कहने लगा कि मुझे पानी। बोला नहीं, पानी ऐसे नहीं मिलेगा। फिर कहने लगा पहले आधी बादशाही मेरे नाम लिख दे। उसने बोला ये ले भाई, आधी बादशाही ले तो आधा गिलास पानी दे दे। उसने जो है आधा गिलास पानी पिया और हो गया। कहने लगा अब ये पानी जो पिया है ये रुक जाए और बाहर ना आए। तो बोला फिर मैं आधा गिलास और दे दूंगा इसको ठीक करने के लिए। मतलब पूरी बादशाहियत उसकी एक गिलास को। अब उनसे पूछो ना
जो रिटेंशन ऑफ यूरिन में होते हैं, तड़प रहे होते हैं, वो बोले बस करो भाई, जो लिखवाना लिखवाओ यार, मेरी जान छोड़ो। तो हमारी तो औकात इतनी है जनाब, एक गिलास में हम सारे खत्म हो गए, और बात बनाते हैं हम इतनी बड़ी बड़ी, इतनी छोटी छोटी, यूं है, ये है, वो है, ये है। एक गिलास पानी में अपनी सारी जिंदगी दे दी, बाकी क्या बचा? कुछ भी नहीं। और हम यहाँ पर बहुत बड़े वो बन जाते हैं। तो यहाँ पर लेते हैं एंड, और मुझे आपके वो 2 टॉपिक्स याद हैं, इससे पहले थ्रोट में नहीं जाएंगे। एक तो हम करेंगे ट्यूमर्स के नाम बताएंगे, कोई लंबी डिटेल नहीं होगी, और एक यहाँ स्टूडेंट ने मुझे याद कराया था, वो था यूस्टेशन ट्यूब डिसऑर्डर, इंशाल्लाह वो करेंगे। ठीक है जरा, तो यहाँ देते हैं ब्रेक।